Yes, good morning class. In this video, we are going to start with exercise 8.4 question number 4. Till now we have completed till question number 3 first second. There were 2 sub questions, right? In question number 4 there are 4 sub questions. So we are going to start with first, and in this video we will cover all question number 4 sub questions. Okay, let's start with question number first. Choose the correct option and justify your answer. What we have to do? We have to choose correct option or we have to justify our answer. But by looking at the question directly, we cannot guess the answer. So what we will do? We will try to solve it, or we can say that we are going to justify it first, and then what answer will come, we will select that option as the correct option. Okay. 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to how much? See, we have to think about it. What can we do? A is 1, B is 9, C is 8, D is 0. Okay. 9 0 तो हो नहीं सकता, 1 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 8 का कोई चांस नहीं है, 9 can be. So what we will do? See, we will try to solve it. We will take this 9 sec square a. This is what justification you can say that. Justification. 9 sec square a minus 9 tan square a. 9 sec square a minus 9 tan square a. This is equal to, see, both the places 9 is there, so I can take 9 as common. So what remains? Sec square a minus tan square a. So if you have observed any time, if we have identity 1 plus tan square a is equal to sec square a, right? So if I do this tan square a this side, what happen? 1 is equal to sec square a minus tan square a. That means what? Sec square a minus tan square a is equal to 1 होगा. So ये क्या हो जाएगा? This is equal to 9 into 1, that is equal to 9. That means which option is correct? Option B. Understood? So like this we have to solve and we have to verify also what answer will be the correct answer. Got it? Okay. Now second. 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. Directly we don't have any idea कि directly कैसे किया जाए, right? So what we will do? That it is written over there, justify your answer. So we first solve it and then we will try. We will find out correct option. Okay. So solve it, or we can write justification. 1 plus tan theta plus sec theta. This is first bracket. 1 plus cot theta minus cosec theta. See, these are the questions in which you have to apply your previous knowledge, right? मैं या तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसका हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे मुझे tan थीटा sec थीटा cot और cosec नजर आ रहा है, राइट? जो कि चेंज हो सकते हैं, राइट? tan साइन अपॉन कॉस में हो सकता है, sec भी 1 अपॉन कॉस में. तो दो मेथड है, तो मैं अप्लाई करके देखूंगा. मुझे भी जो है मैंने किया हुआ है, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन आपने अभी शुरू किया है करना. जब आपको नॉलेज हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करते करते जब आप उसमें एक्सीलेंस हो जाते हो, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है क्या करना है. ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, सबको चेंज करेंगे. सो इट विल बी 1 प्लस sin theta upon cos theta plus 1 upon sin theta. क्या किया हमने? tan को sin upon cos में, sec को 1 upon cos में चेंज किया. ठीक है? सिमिलरली 1 plus cos theta upon sin theta minus 1 upon sin theta. क्या किया यहाँ पे? कॉट होता है cos अपॉन साइन, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन.
अब देखिए यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ साइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस लेना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। एक बार हो गया, एलसीएम ले लिया। सिमिलरली इस ब्रैकेट में क्या करेंगे अब, साइन थीटा एलसीएम कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, एक बार लिख लेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर। नाउ दिस ब्रैकेट इनटू दिस, राइट, तो ब्रैकेट में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से, सो दिस विल बी इक्वल टू सी, पहले हम ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये बड़ा है, ये तो हमें पता है cos थीटा इंटू साइन थीटा आने वाला है, राइट, बट ये वाला लेंथ है कम, पहले ऊपर वाला, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो फर्स्ट टर्म को इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट से, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cos थीटा, ये इसका हो गया। अब ये करेंगे प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बहुत ज्यादा लंबा एक्सप्रेशन है तो अब मैं इसको यहां से यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, देन प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन। नाउ cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक बार cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक बार, तो दो बार cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस cos थीटा और ये प्लस cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, एंड प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, तो व्हाट रिमेन्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा साइन थीटा दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी इंटू में और डिवीजन में सेम क्वांटिटी अगर होंगी ऊपर नीचे तो हम कट कर सकते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 2, दैट मींस व्हाट, आवर ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, पहले हमें जो प्रीवियस नॉलेज था उसके बेसिस पे हमने कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया और फिर क्रॉस और फिर सिंपल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से आंसर आया। सो चीजें जब आपको पता होती है तो आप रास्ता निकाल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि आपको पता है कैसे जाना है, या आपको पता है कि कहाँ जाना है, पर कैसे जाना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नॉलेज की जरूरत होती है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस नॉलेज अगर आपको है तो आप ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। ओके, so this complete your question number 4 first second. Okay, now come on third. Sec a plus tan a into 1 minus sin a. अब हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम वही अगेन sec a और tan a चेंज हो सकता है, उसको चेंज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a
इज इक्वल टू व्हाट, राइट। सो कुछ समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक तो हम पहला इसको इससे, लेकिन हमें उसके आगे क्या करना है? तो पहले हम ये जो क्वांटिटी है यहाँ ये समझ में आ रहा है साइन में है, ये इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं कॉस में। सो 1 अपॉन कॉस ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस प्लस 10 होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। ओके, देन यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। सो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए पहले से है। ओके, सो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। नाउ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? सी यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो cos square a is equal to 1 minus sin square a. Got this? sin square a plus cos square a is equal to 1 होता है, तो अगर आप cos square a यहीं रहने दो और sin square उधर कर दो तो 1 minus sin square a यानी cos square a हो जाएगा। सो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, राइट। तो 1 minus sin square a क्या हो जाएगा cos square a, और अपॉन cos a पहले से cos a और एक cos a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको क्या करोगे, cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर a का मतलब होता है cos a इंटू cos a, राइट, अपॉन cos a। तो cos a गेट कैंसिल, तो व्हाट रिमेन्स cos a। दिस इज योर राइट आंसर, अंडरस्टूड। सो दिस विल बी आवर right option D, right? So here option B, here option C, here option D, right? Now come on to question number 4. Before that, if you want to write, you can write that things. But if you want to write, you have to pause video in between and you have to write. Okay? Let's start with 4. Come on 4 क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शंस है इसके, पहला ऑप्शन है sec स्क्वायर a, दूसरा है -1, तीसरा है cot स्क्वायर a, चौथा है tan स्क्वायर a। तो व्हाट आंसर विल कम? लेट्स सी। 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a, देखकर कुछ क्लिक हो रहा है? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है अच्छी तरीके से तो जरूर क्लिक हो रहा है, राइट। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी तो सारे क्वेश्चन हवा में ऊपर से जाएंगे, बाउंस हो, ठीक है। सो प्लीज आप डेली बेसिस पे रिकॉल करो। ट्रिग्नोमेट्री सारा डिपेंड होता है उसके आइडेंटिटीज पर, उसके रेशियोज, उसके फॉर्मूलेज। अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल एकदम हाईवे पे जैसे गाड़ी सनान से भागती है ना, वैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम फास्ट जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आप अटके फिर समझ लो ब्लंडर हो गया। सो डू वन थिंग, हॉरली एकदम जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे पहले फॉर्मूला रिकॉल करें, ताकि कहीं से भी कुछ भी फॉर्मूला आ जाए तो आपको ये ना, अरे ये कहां से, राइट। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर a upon 1 plus cot square a, so these two are identities, right? So 1 plus tan square a क्या होता है? sec square a upon 1 plus cot square a क्या होता है? cosec square a, right? Then 1 upon cos क्या होता है? 1 upon sec क्या होता है?
1 upon cos स्क्वायर, राइट, एंड 1 upon साइन स्क्वायर होता है कोसेक। अब देखो ये वाला फॉर्म आ गया a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो जब कभी ये फॉर्म हो जाता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर a। तो साइन अपॉन है, cos क्या होता है 10, so this is equal to 10 square a. That means what? Option D is your correct answer. Okay? See this type आपको पता है कि बोर्ड में भी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं स्टार्टिंग में। So all these questions are very important from the board point of view also. So please don't ignore it and write it down every question very properly, clearly. Don't miss the concept. Sometime it happens कि आप लिखते हो थीटा भूल जाते हो, कोई साइन एंगल भूल जाता है, तो ये सब जल्दी की वजह से होता है। तो जल्दी मत करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप सारे रेशोज, सारे आइडेंटिटीज बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सेकेंड थिंग कि सारे को लिखना का तरीका आपको आना चाहिए। थर्ड थिंग, जब कभी कोई चीज करो तो पूरी तरीके से उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड हो। ओके, नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, then we will start with the next questions. Thank you.